رہا جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آئیے خدا ان کی پرستش کریں گے. ہم خدا کے لوگوں کو جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو اس عبادت میں ہمارے ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں آئیے سب مل کر خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت کے لیے دعا کریں گے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم خدا کے قریب آ سکیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے, کیونکہ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں. ہم اسی طرح دعا کریں گے کہ خداوند آج کا کلام نہ صرف ان لوگوں پر جو اسٹوڈیو میں ہیں بلکہ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں, آئیے ان تمام لوگوں کے لیے خدا ان کی برکت کو مانگنا شروع کریں گے. آئیے خدا کے کلام کو, خدا کے خادم کی ترتیب کو, جو بھی وہ آج بولیں وہ خدا کے روح کی تحریک سے ہو. آئیے خدا کے خادم کے لیے دعا کریں گے. کہیں خداوند روزوں کے ان ایام کے اندر فضل بخش کے ہم تیری محبت کو, تیری قربانی کو, تیرے کفارے کو سمجھ سکیں یسوع کے نام سے, تاکہ ہم تیرے قریب آ سکیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا پریمولا ڈینیل سے کہ وہ آج کے کلام کے لیے خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت کے لیے دعا میں رہنمائی کریں. ہاللویا. قدوس قدوس زندہ آسمانی خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ایک بار پھر سے خدا ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں, تیری ستائش کرتے ہیں, تیرے نام کو سر بلند کرتے ہیں. اے خدا شکریہ ادا کرتے ہیں اس لمحہ کے لیے کہ جب ہم تو نے ہے خدا ہمیں ایک نیا دن بخشا ہے, نئی زندگی بخشی ہے, نئی سانسیں بخشی ہیں. اے خدا توفیق بخشا کہ ہم اپنی ہر ایک سانس سے تجھے جلال دے سکیں. خدا اس لمحہ کو اے خدا کہ جب اب ہم تیرے زندہ کلام میں سے سننے کو ہیں تو رب الافواج توفیق بخشنا کہ ہم تیرے کلام کو صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو اپنے دل میں لیں خدا, اور اس پر عمل کریں خدا. تیرے خالق کو, تیرے سورما کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہے خدا. تو اس کو لفظوں کی ترتیب دینا ہے خدا. آج بولنے والا تیرا خادم نہیں ہے خدا بلکہ تیرا روح قدس ہے خدا, جو ہماری زندگیوں سے ہم کلام ہے خدا. تیرا کلام ہے خدا ہر ایک زندگی میں جڑ پکڑے ہے خدا, اور 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے خدا. اے خدا فضل بخشنا ہے خدا کہ یہ تمام زندگیاں جو آج کی شام ہمیں لائیو واچ کر رہی ہیں خدا, یہ تمام زندگیاں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں خدا. آج کا کلام ہم سبوں کی زندگیوں کی ضرورت کے مطابق ہے خدا. آج کا کلام ہم سبوں کو برکت بخشے ہے خدا, اور تیرے جلال میں تیرے عرفان میں بڑھنے کا فضل بخشے ہے خدا. التجا کرتے ہیں خدا کہ تو ہمیں سننے والے کان, سمجھنے والا ذہن اور عمل کرنے والا دل دینا ہے خدا, تاکہ ایسا نہ ہو خدا کہ یہ کلام ابلیس ہماری زندگیوں سے چرا لے جائے خدا, بلکہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہو, ہمارے دلوں کی تختیوں پہ لکھا جائے خدا, تاکہ اے خدا یہ کلام ہماری زندگیوں میں اے خدا اثر انداز ہو, اور ہم سدا اے خدا تیری راہ پہ چلیں خدا, تیری پیروی کریں اور ایسی بھیڑیں بنیں جو اپنے چرواہے کی آواز کو سنتی ہیں. یسوع کے نام سے آمین. ہلیلویا. ہم آج کی آواز کو خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت کو دعوت دیں گے کہ وہ خدا کے زندہ اور معتبر کلام میں سے ہمارے ساتھ بانٹے. مسیح یسوع کے عظیم اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام.
खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए कि खुदा ने फिर से हमारी जिंदगियों में ये मौका फराहम किया है कि हम सलीब के पैगाम पर गौर कर सकें। जैसा कि हमारी सुनहरी आयत जो है कलाम मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों का पहला बाब उसकी 18 आयत में आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे चीज़ों, कलाम मुकद्दस की ये जो आयत हमने पढ़ी है, ये हमें निजात, जिंदगी और मौत के अंदर फ़र्क बताती है। तो कलाम मुकद्दस में जो हमने पौलुस रसूल की मार्फत इस मैसेज को सुना है, इस पैगाम को सुना है, तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस की ये खूबसूरत आयत जो है हमें बताती है कि इंसानों को निजात की ज़रूरत है, रहाई की ज़रूरत है। और हलाक होने वाले कौन से हैं? जो इस कलाम पर अमल नहीं करते। और निजात पाने वाले वो लोग हैं जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तो आज हम इस मज़मून पर बात करेंगे कि गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। तो गुनाहों से बचाने वाला कौन है? कौन हमें गुनाह से बचा सकता है? जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की 21 आयत में लिखा है, खुदा का पैगाम खुदा के बंदा यूसुफ को मिलता है और कलाम हक में ये उससे कहा गया कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे चीज़ों, निजात हिदा के बारे में अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, तो हमें फरिश्तों की मार्फत ये मैसेज मिल रहा है कि किस तरीके से यूसुफ को बताया गया है कि तेरी बीवी मरियम के हाथ जो पैदा होगा वो निजात हिदा होगा, वो दुनिया को उनके गुनाहों से छुटकारा देगा। तो मेरे चीज़ों, हम कलाम मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत को देखते हैं कि उसके पैदा होने से कई सौ साल पहले हमें ये नबूवतें कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। नबियों की मार्फत ये नबूवतें की गई हैं कि एक आ रहा है, एक पैदा होने वाला है और वो निजात देता होगा। और ये पैगाम मुकद्दसा मरियम को भी फरिश्ते ने दिया कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो मेरे चीज़ों, सलीब जो है ये गुनाहगारों की निजात का निशान बन गई है, क्योंकि सलीब पर इससे कबल कि ये निजात का काम होता, ये सलीब एक लानत का निशान थी। बदकार, गुनहगार और खूनी डाकुओं के सलीब पर अटकाया जाता था, उन्हें ये सजा दी जाती थी। लेकिन मैं और आप खुश नसीब हैं कि हमारी खातिर हमारा मसीहा जो बेगुनाह था, जो हमारे गुनाह कायनात के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और ये लानत बरकत में तब्दील होगी। हालेलुया! ये लानत बरकत में तब्दील होगी, ये लानत जिंदगी में तब्दील होगी। ये निशान जो लानत का निशान था, आज मेरे और आपके लिए जिंदगी का निशान बन गया है। मेरे सीधो, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आइए कलाम मुकद्दस में एक और आयत को हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब उसके 18 बाब की 23 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि खुदा इंसानों की हलाकत नहीं चाहता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है? ये सवाल कर रहा है खुदा कि क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। देखिए मेरे चीजों, खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। दुनिया के अंदर जितने शरीर पाए जाते हैं, गुनहगार पाए जाते हैं, बदकिरदार पाए जाते हैं, जो बदी के बानी हैं, खुदा उन्हें मौका दे रहा है, बुलाहट दे रहा है कि वो अपने गुनाहों से क्या कर ले? तौबा कर ले। इस सलीब के वसीला से वो हलाकत से बच जाए। जब वो इस सलीब के साए के नीचे आ जाएंगे, तौबा कर लेंगे, तो खुदा उनको जिंदगी बख्श देगा। बात जब ऐसा होता है कि हम अपने खानदानों की तरफ देखते रहते हैं कि हमारे खानदान के सारे लोग गुनहगार हैं, हमारे खानदानों ने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, तो हम ऐसा क्यों करें? लेकिन याद रखिए,
हर कोई अपने गुनाह की सजा खुद पाएगा। मैं आपको एक हवाला और देना चाहता हूँ, हिजकिय्याह उसके 18 बाब की 20 आयत को देखिए। कलाम मुकद्दस हमें वाज़िह करता है कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। अगर आप गुनहगार हैं तो आप मरेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है बेटा बाप के गुनाहों का बोझ ना उठाएगा और ना बाप अपने बेटे का बोझ। तो याद रखें, आप खानदानों की तरफ ना देखें, अपनी फैमिली की तरफ ना देखें, बल्कि अपने लिए तौबा का दरवाजा जो खुला है उसकी तरफ देखिए, अपने निजात हिदा यीशु मसीह की तरफ देखिए कि वो आपको बचाने के लिए ज़मीन पर आया है। इससे कबल को ज़मीन पर आता, इससे कबल को वो पैदा होता। फरीस्ते बता रहे हैं कि एक निजात हिदा आ रहा है, और जब वो दुनिया में आया तो उसने किस तरीके से हमें निजात दी है, खुद को सलीब पर चढ़कर ऐसी लानती मौत को उसने हमारे लिए गवारा किया है ताकि हम गुनाहों से बचकर जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर अपनी खिदमत कर रहे थे, और उस बशारत के दौरान, खिदमत के दौरान, लूका की इंजील उसके 13 बाब में देखिए, उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है, कुछ लोगों ने आकर यीशु मसीह को लोगों की बाबत बताया जो हलाक हुए थे, और 18 लोगों पर शलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए। और आकर वो यीशु को बता रहे थे, और वो भी गुनहगार थे, वो समझ रहे थे कि वो शायद ज्यादा गुनहगार हैं, लेकिन यीशु मसीह से क्या कहते हैं। लूका की इंजील 13 बाब की 3 से 5 आयत में पढ़ेंगे तो आपको ये हवाला मिल जाएगा। यानी क्या, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम लिखा, क्या वो 18 आदमी जिन पर शिलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। इसलिए मेरे चीजों, हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, हमें अपनी जिंदगी की तरफ देखना है। हम दुनिया के साथ हलाकत की तरफ ना जाएं, बल्कि हम अपने आप को खुदा के पास ले आए। खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी बाबत फरीतों ने पहले से कई सौ साल, 600 साल, 700 साल नबूवतें हमें मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से पता चलता है कि यीशु भी पैदा भी नहीं हुए, उनकी बाबत पहले से नबूवतें मौजूद हैं। उनके पैदा होने के, उनके मसलूब होने के लिए पहले से बताया गया है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, छुटकारा देगा, रिहाई देगा। और मेरे सीसों, आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, इमसाल की किताब उसकी 28 बाब की 13 आयत में, यहां पर भी इमसाल का जो मुसन्निफ है यूं लिखता है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज़ कामयाब ना होगा, बल्कि जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। अगर आप अपने अंदर गुनाहों को लेकर बैठे हैं तो आप मौत का इंतजार कर रहे हैं, मौत आपका मुकद्दर बन जाएगी। अगर आप अपने गुनाहों का इतराफ कर लें, इकरार करके उन्हें छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, तो आप पर रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। वही यीशु, वही निजात हिदा आपको माफ कर देगा। तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आइए हम तौबा की तरफ लौट आए। और तौबा किस तरह करनी है, हमें किस तरह खुदा के पास आना है, मैं आपकी रहनुमाई खुदा के कलाम में से करना चाहता हूं। यूएल की किताब उसके 2 बाब की 12 और 13 आयत में पढ़िए, खुदावंद किस तरीके से हमें बुला रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, अब भी पूरे दिल से रोजा रखकर, अब भी पूरे दिल से रोजा रखकर गिरयासारी और महतम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। मेरे शिशो, ये बुलावा तमाम दुनिया के गुनाहगारों के लिए है। खुदा फरमाता है, पूरे दिल से, ताबेदारी के साथ आइए, वापस लौट आइए, अपने गुनाहों से मुंह मोड़ लीजिए। गिरयासारी का मतलब है रोना, पीटना, वावेला करना। तो खुदा कहता है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। कई दफा हम अपनी सारी पाकीज़गी पर ज्यादा तवज्जो करते हैं, लेकिन अपने दिल को नहीं देखते, अपनी जिंदगी को नहीं देखते कि हमारे अंदर कितना गुनाह मौजूद है। अब कलाम मुकद्दस हमें बुला रहा है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है।
मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस का खूबसूरत प्रॉमिस, खूबसूरत वादा आज तमाम देखने सुनने वालों के लिए है। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आइए अपने दिलों को खोलिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, दिलों को चाक करके जब हम इसके मीनिंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये जो चाक करना है इसका लफ्जी मतलब है फाड़ना या चीर डालना। खुदा चाहता है कि हम अपने दिलों को खोलकर इनको चीर फाड़ कर इसके अंदर खुदा की आवाज को आने दें। और जब हमने खुदा की तरफ आना है तौबा के लिए, तो कौन सी चीज हमारे पास होनी चाहिए। आइए मैं एक और हवाले से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। होशिया की किताब उसके 14 बाब को देखिए, उसकी 2 आयत के अंदर भी हमें यह दावतनामा मिलता है, कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रुजू लाओ। हालेलुया। कैसे आना हमने? कलाम लेकर, क्योंकि लिखा है मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राह के लिए रोशनी है। और लिखा है कहो कि हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बुला रहा है। खुदा ने बहुत सारे नबियों, पैगंबरों और रसूलों को भेजा इसलिए था ताकि वो इंसानों को वापस बुला सके। आज मेरे और आपके पास मौका है। हमने जिंदगी के बहुत सारे साल जाया कर लिए हैं। अब हो सकता है हमारे पास वक्त कम हो, हम अपनी जिंदगी की बाबत नहीं जानते कि हमारे कितने याम बाकी हैं। लेकिन आज की शाम मैं आपको दावत देना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आइए हम खुदावंद के पास लौट आइए। खुदा का कलाम जो है वो हमें बता रहा है। इमाल की किताब 3 बाब की 19 आयत में दावत है, बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। खुदावंद चाहता है कि हमारे गुनाह, हमारी बदकिरदारियां मिट जाएं, हमारे बदन पाक साफ हो जाए ताकि हम खुदा की बादशाही के लायक बन जाएं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाहगार का कभी भला नहीं होगा। मेरे अजीजों, हम देखते हैं ज़बूर 32 की 5 आयत में भी यहाँ भी खुदा का बंदा किस तरीके से अपने गुनाहों का इतराफ करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 32 की 5 में, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया है। बाज़ दफ़ा हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते, हम इकरार नहीं करते, हम अपनी बदी को छुपाते रहते हैं। अभी मैंने आपके सामने मिसाल 28 में पढ़ा था कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब न होगा। इसलिए खुदा का बंदा ज़बूर में फिर से ये कह रहा है कि मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया है और अपनी बदकिरदारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदा के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ कर दिया है। ज़बूर नबीस जो है ज़बूर 66 के अंदर कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। यकीनन खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया है और उसने अपनी शफकत को मुझसे बाज नहीं रखा। आज शाम मेरे और आपके लिए ये जरूरी है, आप देखने और सुनने वालों के लिए जरूरी है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। अगर हम इकरार करेंगे तो वो हमारी आवाज को सुन लेगा। पहला यूहन्ना के पहले बाब की 9 में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल खुदा है। हालेलुया। जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो खुदा किस तरह के लोगों को माफ करता है और बचाता है। मेरे सीधो ज़बूर की किताब ज़बूर 34 की 18 में पढ़े तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और वो खस्ता जानों को बचाता है। आइए अपने दिलों को नरम कीजिए। शिकस्ता दिल, टूटा हुआ दिल, परेशान बदहाल दिल की आवाज वो सुन लेता। अगर आप गंभीर हैं, गुनाहों की वजह से परेशान हैं, तो मेरे चीज आपके पास मौका है। उसी तरह जिसका लूका की अंजील 18 बाब की 13 में लिखा है कि एक मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि वो आसमान की तरफ नजर उठाए, बल्कि कलाम हक में लिखा उसने छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो मेरे चीज अगर आज शाम आप चाहते हैं कि खुदा आपको माफ कर दे तो इससे सीख सकते हैं कि ये तो हैकल की छत की तरफ भी नहीं देखता, बल्कि छाती पीट पीट कर दुआ कर रहा है कि आए खुदा मुझ गुनहगार पर क्या कर, रहम कर। तो कलाम हक में लिखा है कि खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया।
खुदावंद इस कलाम के उसीला से आपको बरकत बख्शे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू जो जाहो जलाल का बादशाह है, तू जो कुदरत और कमाल का बादशाह है। ऐ खुदा, हम तमाम देखने और सुनने वालों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद, खुदा जो हमें लाइव देख रहे हैं, हम उन सब पर तेरे फजल को मांग लेते हैं। ऐ खुदावंद, आज जितनों ने इस कलाम को सुनकर अपने गुनाहों से तौबा की है, ऐ खुदा ने फजल बख्श कि वो जल्द से जल्द ऐ खुदावंद खुदा तौबा के जरिया से, बपतिस्मा के जरिया से वो तेरी निजात को कबूल कर लें, तेरी बादशाही का हिस्सा बन जाएं और तुझ निजात दहिंदा को कबूल करके खुदा वो भी तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाए, ताकि जब तू आए तो वो भी हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल कर सके। मैं तमाम देखने सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आज शाम इस कलाम की कुदरत से अपने लोगों पर रहम फरमा, बरकत दे, निजात में कामिल कर, ताकि ये अपनी बाकी जिंदगी तेरे जलाल का बाइस बने रहे। यीशु मसीह के कादर और कदूस नाम में, आमीन। आइए हम वो दुआ मांगेंगे जो हमारे मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आप से लेकर हमेशा तक हाजिर जमायत के साथ और तमाम देखने सुनने वालों के साथ और तमाम दुनिया के मुकद्दस ईमानदारों के साथ और बिलखुसूस आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू।